Hello students, a very welcome to all of you. Now today in trigonometry 2, we are going to move ahead with exercise 3.3 question number 3. Last time we have done till question number 14. Now today we will be starting with the 15th question onwards, and with two extra problems we will finish off this exercise. So let us begin with the solution for the 15th problem. So what do? We consider the left hand side and obtain the right hand side. Chalo, let us begin with the solution of the 15th example, students. So for that, solution for example number 15, let us first consider the left hand side. Write down what is the left hand side, students? 2 cos 4x, put a bracket for 4x plus 1 upon denominator contains 2 cos x plus 1. ऐसा लिखो आप, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करोगे तो यू जस्ट पुट अ ब्रैकेट फॉर 4x. उसने ब्रैकेट नहीं डाला है, बट दिस इज हाउ और व्हाट इट मींस, यू नो. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर दिस प्रॉब्लम वी आर सपोज टू यूज ओनली वन फॉर्मूला. तो पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए. हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर cos 2 theta. तो cos 2 theta का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट 2 cos square theta minus 1. अब ये वाला फॉर्मूला इस पूरे प्रॉब्लम में हमें न्यूमरेटर में अप्लाई करना है, एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई सो दैट वी गेट अवर राइट हैंड साइड. तो चलो राइट डाउन. नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, नाउ दिस टू रिमेनिंग सेम. नाउ जस्ट पे अटेंशन. Now this formula is to be applied on this, but if you observe, यहाँ पे है cos 4x. Now let me explain you over here. So see over here, students. So if I want to find out cos 4x का value by the formula, it will be nothing but 2 cos square 2x minus 1 हो जाएगा. So cos 4x will be written this way. This plus 1 is going to remain the same, so as the denominator is also going to remain the same. No change takes place in the denominator. देखो cos 2 theta का ये फॉर्मूला है 2 cos square theta minus 1. अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास cos 4 theta होता, वैसे 4x है, वैसे 4 theta, तो cos 2 theta is what? 2 cos square theta minus 1. तो 2 theta का theta हो गया, तो cos 4 थीटा का क्या हो जाता? 2 cos square 2 थीटा minus 1 हो जाता. 4 थीटा का 2 थीटा हो जाता. तो दिस इज व्हाट वी हैव अप्लाइड ओवर हियर, बट एज यू नो कि इट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ x, so we are supposed to write down everything in form of x only. तो चलो लिखो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है. नाउ व्हाट डू वी डू? We open up the bracket in the numerator. So what will happen, students? ये 2 multiply हो जाएगा, तो this will become nothing but 4 cos square 2x minus 2 plus 1. न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर दिया. डिनोमिनेटर इज गोइंग टू रिमेन सेम, 2 cos x plus 1. ठीक है. नाउ न्यूमरेटर फर्दर गेटिंग सिंप्लीफाइड, स्टूडेंट्स. So chalo, I'll write down over here. So this will be further equal to 4 cos square 2x remaining same. This is going to become minus 1 upon denominator same रहेगा, 2 cos x plus 1. चलो write down this step. Clear? यहाँ तक लिख लो आप. इसको मैं रब कर देता हूँ. ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम में. Now what do we do? This is of the form a square minus b square. No doubt 1 लिखा है तो अंडरस्टूड है ना, 1 स्क्वायर है वो. तो a square minus b square का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो व्हाट विल दिस बिकम? राइट डाउन. दिस विल बी रिटन एज 2 cos 2x minus 1, एक ब्रैकेट में डालो, एंड अनदर ब्रैकेट 2 cos 2x plus 1, a minus b into a plus b. Denominator में there is no change, so keep the denominator as it is.
2 cos x प्लस 1। अभी आप ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म है 2 cos 2x माइनस 1, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दिस टर्म इज रिक्वायर्ड ऑन द राइट हैंड साइड एज यू कैन ऑब्जर्व। तो उसको कुछ नहीं करना है, अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो व्हाट सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल? तो दिस cos 2x will be replaced according to this formula। तो चलो रीड डाउन, नेक्स्ट स्टेप लिखो आप। दिस ब्रैकेट रिमेनिंग सेम, 2 cos 2x minus 1, open up a square bracket, this 2 remaining same, this cos 2x will be written as 2 cos square x minus 1, close the bracket। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये प्लस 1 ऑलरेडी है, हाँ। एंड देन क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट and denominator remaining same। चलो write down till here, then I'll rub off this formula। ये आप आपके रेफरेंस के लिए लिख के रखो साइड में कि ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है प्रॉब्लम में, ठीक है। So just drop this off, now just multiply this 2 inside, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आगे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 cos 2x minus 1। अच्छा, अभी थोड़ा टाइम सेव कर देता हूं मैं, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 4 cos square x minus 2 plus 1 minus 1 होता है। थोड़ा डायरेक्ट लिखो आप, कि यहाँ पे मैंने आपको वो स्टेप करके बता दिया, -2 + 1 -1 होता है। आई हैव शोन यू ऑलरेडी, अपॉन 2 cos x plus 1 remaining same। Now again student, this term is of the form a square minus b square, तो उसको हम a minus b into a plus b लिख सकते हैं। So write down, this is further equal to, problem almost getting over, 2 cos 2x minus 1 remaining same, this will be written as 2 cos x minus 1 into 2 cos x plus 1 upon denominator में we are already having 2 cos x plus 1। अब देखो, ऑब्जर्व करो, ये 2 cos x plus 1 और ये 2 cos x plus 1 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? 2 cos 2x minus 1 into 2 cos x minus 1 is remaining, and this itself is nothing but our RHS problem is over। Now I am running short of the space, इसलिए वापस लिखा नहीं, but see these two terms are left out, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, और यही हमारा राइट हैंड साइड है क्वेश्चन का, देखो, ठीक है। Problem is over, please make a note of this, then we'll move on to the next example। Okay students, so let's move on to the next question number 16। Let us consider the left hand side and obtain the right hand side। So please write down the left hand side of the question। Now students, in this problem one formula is to be used initially, and that formula is, write down, cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta upon 2 होता है। Now see in your notebook, I have given you this formula already in writing। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta होता है। तो cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta divided by 2। तो थीटा का डबल यहाँ पे हो जाता है। तो चलो रीड ऑन फर्स्ट स्टेप। तो cos square x will be written as 1 plus cos 2x upon 2। check, cos square theta is 1 plus cos 2 theta divided by 2, प्लस यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, बट डू ऑब्जर्व दिस इज वर्किंग एज थीटा, ये यहाँ पे थीटा का काम करेगा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 इंटू थीटा, थीटा का डबल। तो देखो क्या हो जाएगा, राइट डाउन अलोंग विथ मी, 1 प्लस cos इसका डबल, ये एंगल का डबल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 240 डिग्री। दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। ये देखो, ये फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, प्लस लास्ट में
लेट्स सी ये अकाउंटेड हो जाए यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा इसका डबल तो हो जाएगा 2x माइनस 240 डिग्री। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, नाउ आई थिंक सो दैट विल नॉट बी विजिबल टू यू प्रॉपरली। तो ये चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ कि वापस वो वहां पे आ जाए। दिस विल बिकम 1 प्लस cos ऑफ इसका डबल दैट विल बी 2x माइनस 240 डिग्री। आई एम रीडिंग इट आउट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये थीटा का काम कर रहा है, ये वाला जो एंगल है ना x माइनस 120, दिस इज वर्किंग एज थीटा। सो दिस वन सिंगल फॉर्मूला we have applied on all the three terms. Write down till here. Is it visible to you? Yes. Okay. Now what will we do? ये जो upon 2 है ना, ये सारे terms को हम split करेंगे। Write down. Next step कैसा हो जाएगा? This will be ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। This will be 1 by 2 plus cos 2x by 2 plus 1 by 2 plus cos 2। अच्छा, ये ऐसा भी कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, अभी लिख दिया, लिख दो। cos of 2x plus 240 degree upon 2 plus 1 by 2 plus cos 2x minus 240 degree divided by 2 upon 2 सबको स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, चलो राइट डाउन। आई एम गोइंग स्टेप वाइज। इनिशियली राइट हैंड साइड में देखो हमें 3/2 चाहिए, भी रिक्वायर 3/2। तो चेक हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, half plus half is 1, 1 plus half is nothing but 3/2। तो ये तो 3/2 हो गया, प्लस this cos 2x by 2 remains the same। अब देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा लिख देते हैं। दिस विल बी रिटर्न एज cos of 2x plus 240 डिग्री plus cos of 2x minus 240 degree and this is completely divided by 2। वैसे तो सबका डिनोमिनेटर 2 ही है, बट लेट अस कीप दीज टू टर्म्स एज इट इज, और ये दोनों का आप अपॉन 2 लिख लो प्लस करके। राइट डाउन दिस स्टेप। नाउ आई जस्ट रब ऑफ दिस फॉर्मूला व्हिच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो ऑप्शंस है। There are two methods with which we can solve the problem. So let us first do it by method 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं cos of a plus b, and for this term we are going to use the formula for cos of a minus b। तो यहाँ पे cos of a plus b का फॉर्मूला, यहाँ पे cos of a minus b का फॉर्मूला यूज करेंगे। These two terms are to be kept the same। So I was saying that students, these two terms are going to remain the same। ठीक है, now I will need space। अब ये पूरा एक लाइन में आएगा नहीं, तो ठीक है, let us try to do it। तो लिखो ऐसा आएगा, this will be further equal to 3/2 plus cos 2x divided by 2। ये दो टर्म सेम, प्लस now let us first apply cos of a plus b का फॉर्मूला over here। ठीक है, तो I will try to write down on the next line। ठीक है, तो cos of a plus b का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? राइट डाउन cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos of a plus b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस, ठीक है, cos of a minus b का फॉर्मूला, so that will be nothing but plus sign cos a cos b plus sin a into sin
b. Close the bracket and this is completely divided by 2. ऐसा लिखो आप, देखो ये वाला जो टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लस साइन इज ओवर हियर, कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, रिटर्न दिस इज डिवाइडेड बाय 2, so this is whole upon 2. चलो write down till here. Now see what do we observe. ये वाला टर्म देखो आप, ये नेगेटिव टर्म है और ये वाला टर्म पॉजिटिव है, sin 2x इंटू साइन 240 एंड sin 2x इंटू साइन 240. तो ये वाला पूरा टर्म ये वाले पूरे टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, गेटिंग कैंसिल. So now what is left out? So next step अभी आप लिखिए, this is nothing but equal to 3/2 plus cos 2x by 2. ये दोनों टर्म्स सेम एज इट इज, ये प्लस साइन cos 2x into cos 240, cos 2x into cos 240. So this will become 2 times of cos 2x into cos 240 degrees. See, this is one time. 1 time plus 1 time is 2 times of 2 cos 2x into cos 240, and this is completely divided by 2. अपॉन में 2 ऑलरेडी है, तो ये स्टेप सिंप्लीफाई होके ऐसा हो गया. अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो दिस 3/2 रिमेनिंग सेम प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 रिमेनिंग सेम प्लस cos 2x into cos 240 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो. नाउ रिकलेक्ट अलाइड एंगल फॉर्मूलेज. तो cos 240 डिग्री का वैल्यू मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे फाइंड करके बता देता हूँ. तो cos 240 डिग्रीज will be written as, so 240 is nothing but 180 plus 60. ठीक है, I hope that will be visible to you. स्क्रीन में दिख रहा है आपको. 180 plus 60. Now that is nothing but equal to, this value will be minus cos 60 हो जाएगा. Cos of pi plus theta is minus cos theta and this is nothing but equal to minus 1/2. तो cos 240 डिग्रीज का जो वैल्यू है दैट इज minus 1/2. ठीक है, तो ये वैल्यू minus 1/2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो cos 240 डिग्रीज का वैल्यू minus 1/2, तो ये अपॉन में आप लिखो -2, ऐसा हो जाएगा. minus 1/2 वैल्यू आ गया cos 240 डिग्री का, तो अपॉन में -2 लिख दिया हमने. नाउ व्हाट विल हैपन, प्लस ऑफ माइनस विल बिकम माइनस. Now since I am running short of space, तो प्लस ऑफ माइनस माइनस कर दो आप उसको. ठीक है, ये रीजन लिख दिया मैंने. तो प्लस ऑफ माइनस विल बिकम माइनस. अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट लेफ्ट आउट विथ 3/2 and this itself is nothing but our RHS, hence proof. देखो आ गया ना 3/2. So see, we have used allied angle formula also for solving this problem. Please make a note of this. ये method 1 हो गया, इसके बाद method 2 बताऊंगा मैं आपको. So now what we do, let us do the same problem by method number 2. तो उसके लिए जरा मेरे को ये रब करना पड़ेगा. Just give me a time of 30 seconds. तो तब तक आप ये लिख लो यहाँ तक method 2. मेथड 1 के जगह पे नाउ यू राइट डाउन मेथड 2. नाउ द वे आई एम शोइंग यू, बिकॉज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज करना है हमें. Now obviously that formula is given after the exercise, but वो मैं formula पहले लिख देता हूँ. That formula that we are going to apply over here is the formula for, write down, cos C plus cos D. एक पार्ट है आगे चल के हमें करना है, that is called as factorization and defactorization formulas. आगे और formulas आने वाले हैं.
तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग इट डाउन. राइट डाउन cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 होता है. ये फॉर्मूला आप लिख लो. आई विल अप्लाई, डोंट वरी, अप्लाई करके बताऊंगा मैं आपको. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है ये फॉर्मूला, बट अभी इस एक्सरसाइज में भी ये रिक्वायर्ड है. तो प्लीज रिमेंबर, एक्सरसाइज जो है दे आर नॉट टोटली डिपेंड ऑन द सेम फॉर्मूले. कौन सा भी फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है. Allied angle formula you can apply in the first exercise, in the second, in the third, in the fourth, in the fifth. कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच. इसीलिए ये प्रॉब्लम को मैं आप इस फॉर्मूला से भी आपको करके बताऊंगा. तो चलो लेट्स अप्लाई cos c plus cos d. अभी आप कंपेयर करो cos c. तो दिस होल एंगल, ये जो है ये पूरा ब्रैकेट, दिस इज कैपिटल C and this complete bracket is nothing but capital D. तो हमें क्या करना है, cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So these two terms remaining same. चलो अभी आप लिखो, ये अपॉन 2 पहले से ही है. Okay, now what will it become? Write down 2 cos bracket c plus d. Now c plus d means what will happen? अब जगह कम पड़ जाएगी थोड़ी मेरे को, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ. देखो यहाँ पे c प्लस डी मैं आपको यहाँ पे अलग से करके बता देता हूँ. c प्लस डी, सो मीन्स इट विल बी 2x प्लस 240 डिग्री प्लस d. d क्या है? 2x माइनस 240 डिग्री अपॉन 2. चेक फॉर योर रेफरेंस, आई एम राइटिंग डाउन दिस वे. वैसे लिखना हमें यहाँ पे है, बट आई विल not be able to accommodate in that much space, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो चेक 2x c plus d, c plus d, ये फॉर्मूला देखो आप, c plus d, ये c है और ये d है. तो c plus d divided by 2 अपॉन में 2 है. ठीक है. तो नाउ सी व्हाट विल हैपन, प्लस 240 माइनस 240 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? 2x plus 2x 4x, 4x divided by 2, so that is nothing but 2x मिलेगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स? वी आर नाउ लेफ्ट आउट विथ cos 2x. यहाँ पे cos 2x बच गया. कैसे? तो ये उसका वर्किंग है. व्हाट वी हैव डन, 2 cos c plus d, ये c है और ये d है, ये दोनों को हमें ऐड करना है. अब क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं थी लिखने के लिए, तो I've written it over here, c plus d divided वाला by 2, उसका वर्किंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. हाँ चलो, तो ये cos 2x मिल गया इनटू, आगे देखो, इनटू cos ऑफ c माइनस d by 2 करना है अभी. ठीक है ना. तो चलो यहीं पे मैं वर्किंग करता हूँ. c माइनस d करना है, तो आई जस्ट रब दिस ऑफ. चलो वापस पूरा ही हटा देता हूँ मैं इसको. लेट अस डू इट वंस अगेन, बट इसका जो वर्किंग है वो मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ. c माइनस डी, c लिखो, ब्रैकेट ओपन करो. c क्या है? 2x प्लस 240 डिग्री माइनस d, एंगल d. एंगल d क्या है? 2x माइनस 240 डिग्री एंड दिस इज कंप्लीटली अपॉन 2. c माइनस d अपॉन 2 है. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये प्लस 2x और माइनस 2x आपका कैंसिल हो जाएगा. तो 240 प्लस 240 इज 2 टाइम्स ऑफ 240 डिग्री अपॉन में 2 सेम है, तो ये 2 कैंसिल हो गया. तो दिस इज नथिंग बट 240 डिग्री बच गया. तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो एंगल आएगा दैट इज नथिंग बट 240 डिग्री. तो देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये वाला जो स्टेप है वो एक ही इसमें मिल जाता है. ओके, राइट डाउन. वैसे तो वो एक डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी है. दिस इटसेल्फ इज अ डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला आल्सो. ऐसा होता है, ये भी एक फॉर्मूला है
कि इफ यू सी दिस वे ऑल्सो, अगर आपको ऐसा नहीं अप्लाई करना है तो ये cos c प्लस cos d का हो गया। अगर आपको ये भी नहीं अप्लाई करना है तो इट कैन बी डन दिस वे ऑल्सो। आई विल एक्सप्लेन टू यू। आई रब दिस ऑफ। एक सिंपल तरीका है और इसका वो भी हमारा थर्ड ऑप्शन बन जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखो, राइट डाउन द फॉर्मूला। द फॉर्मूला सेज, देखो, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इज नथिंग बट इक्वल टू 2 cos a cos b होता है। दिस इज कॉल्ड एज एन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। वी हैव टू डू इट अहेड। आगे जाके हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो सीखना है उसको कैसे अप्लाई करना है, बट मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको। cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इज नथिंग बट इक्वल टू 2 cos a cos b होता है। तो चेक ओवर हियर, इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये और सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझना। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ये देखो, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? 2 cos a cos b। तो क्या हो जाएगा? 2 cos a क्या है? 2x है, तो 2 cos 2x इंटू cos b। व्हाट इज b? b इज 240 डिग्री। एक स्टेप में काम हो गया। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। मेथड 1 मैंने आपको बता दिया, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, cos t प्लस cos d का फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। एंड आई हैव शोन यू डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला आल्सो। 3 ऑप्शंस है टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। क्यों बता रहा हूँ? प्रॉब्लम्स को रट्टा नहीं मारना है, समझ के हमें प्रॉब्लम्स को करना है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। 2 cos a cos b हो गया। चलो, नोट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर योर रेफरेंस। अब क्या होगा? प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओवर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 3/2 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। cos 240 डिग्री का वैल्यू हमने माइनस हाफ फाइंड किया पहले ही, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये cos 2x बाई 2, ये cos 2x बाई 2 गया, तो आंसर इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2। प्रॉब्लम इज ओवर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, then we'll move on to the next example. So next example, students, question number 17. 2 cosec 2x plus cosec x, we have to prove this is equal to sec x into cot of x by 2 हमें प्रूव करना है। तो चलो, let us consider the left hand side and obtain the right hand side. Now what we'll do, let us convert everything in form of sine. So done, first step ये हो जाएगा 2 upon sin 2x plus this will be written as 1 upon sin x by using the reciprocal identity. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin to theta का, तो sin 2x will be written as 2 sin x into cos x plus 1 by sin x remaining same. Now please see the formulas in your notebook. sin to theta का फॉर्मूला आता है 2 sin theta into cos theta. अब ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे, तो cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। व्हाट विल दिस बिकम? 1 प्लस cos x होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर इट इज sin x into cos x। cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, ठीक है। नाउ रिकलेक्ट द फॉर्मूला दैट इज टू बी अप्लाइड। अच्छा, वन मोर थिंग यू ऑब्जर्व, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए sec x, तो इसमें से वो जो अपॉन वाला cos x है वो अलग निकाल लो आप। दिस वे, राइट डाउन, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन sin x इनटू 1 बाय cos x, ऐसा लिख लो आप इसको। दिस स्टेप विल बी रिटर्न दिस वे। अब 2 फॉर्मूलेज हमें अप्लाई करने हैं। एक तो आप देखो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज में 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है।
1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड हाफ एंगल में जो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेज है उसमें साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। विदाउट फॉर्मूलेज तो डोंट एवर इमेजिन ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन द एक्सरसाइज। विदाउट फॉर्मूलेज तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। So write down next step. What will this become after this? 1 plus cos x will be written as 2 cos square x by 2 upon sin x will be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2 हो जाएगा into 1 by cos x is nothing but sec x बन जाएगा। चलो write down till here everyone। अभी क्या करेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। वन ऑफ द cos x by 2 गेट्स कैंसिल, एक पावर कम हो जाएगा। So what is left out? Cos x by 2 upon sin x by 2 is nothing but cot x by 2 into sec x remaining same, and this itself is nothing but our RHS. So equal to RHS, hence proved problem is over. LHS से start किया था, RHS we have obtained, problem is finished. Please make a note of this. Okay students, so let's move on to the next question. Problem number 18. Consider the left hand side. तो क्या दिया है हमें 4 cos x into cos pi by 3 plus x into cos pi by 3 minus x. There is correction in the textual example. जो टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है उसमें इसमें प्लस दिया है, बट देर इज समवेयर समथिंग इज मिसिंग। तो ये मैंने एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। इक्वल टू cos 3x हमें प्रूव करना है। Now what we'll do, we will apply the formula for cos of a plus b and here cos of a minus b. तो चलो write down next step. This is further equal to 4 into cos x remaining same. अब इसके ऊपर आप cos of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करो तो लिखो क्या मिलेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b इंटू cos of a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में मैं नीचे लिख देता हूँ वो, दैट इज नथिंग बट cos a cos b प्लस sin a sin b. We have applied the addition and subtraction formulae. Now substitute the value of cos pi by 3 and sin pi by 3 and write down the next step. So 4 cos x same रहेगा cos pi by 3. Pi by 3 means it is 60 degrees. So cos 60 का value क्या है? What is value of cos 60? So it is nothing but 1 by 2 into cos x minus sin 60 का value root 3 by 2 into sin x. Close the bracket. ये ब्रैकेट में भी वही आएगा बट बीच में प्लस साइन है। दिस इज 1 by 2 cos x plus this is root 3 by 2 into sin x. Close the bracket. Now these two brackets, it's of the form a minus b into a plus b. देखो ये जो पूरा टर्म है ये a है और ये b है। Check, this is a and this is b. So a minus b into a plus b, a square minus b square होता है। So this is further equal to 4 cos x remaining same, इसका square, so that is 1 by 4 into cos square x minus इसका square is 3 by 4 into sin square x. Close the bracket. Now what do we do after this? This 4 cos x gets multiplied inside. ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 cos x दोनों को। तो क्या मिलेगा, ये 4 इसके साथ कैंसिल, cos x into cos square x, so that is nothing but cos cube x होता है, माइनस ये 4 इसके साथ कैंसिल,
3 रिमेनिंग cos x into sin square x होता है. But what do we want on the right hand side? cos 3x. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. cos 3 थीटा होता है. ओके, सो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ cos. तो यहाँ पे ये जो साइन वाला टर्म है ना, उसको हमें cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी. तो नेक्स्ट स्टेप लिखो आप, cos क्यूब x remaining same, this sin square x will be written as 1 minus cos square x. अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दो. ठीक है, minus 3 cos x into 1 is minus 3 cos x, minus of minus is plus. Now cos cube x plus 3 cos cube x is nothing but 4 cos cube x minus 3 cos x remaining same, and this itself is nothing but cos 3x, and this is nothing but our RHS. कैसे ये cos 3x बन गया? देखो फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा होता है. तो ये cos 3x हो गया. This itself is nothing but our right hand side. Problem is over. Please make a note of this. लिख लीजिए आप इसको. Then we'll move on to the next one. Okay, so please write down the next question, question number 19, and ये exercise का last problem है. ठीक है. Now in this problem students, when we have considered the left hand side, यहाँ पे दो formulas हमें अप्लाई करने हैं. आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ जो formulas अप्लाई करने हैं. Okay, observe the right hand side that we want, it is in terms of tan. tan के terms में है right hand side. So we will be using the sin theta का formula. Sin theta is 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2 होता है. सब मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला देखो आप, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में. एंड देन वी आर गोइंग टू यूज cos थीटा का फॉर्मूला विच इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. ये दो फॉर्मूले हमें इस प्रॉब्लम में अप्लाई करने हैं. प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. तो चलो राइट डाउन. दिस विल बी फर्दर इक्वल टू sin x का फॉर्मूला. So this will be written as 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 into ये tan x by 2 सेम रहेगा प्लस 2 into cos x will be written as 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 क्लोज द ब्रैकेट. देखो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं. चलो राइट डाउन फर्स्ट स्टेप. नाउ सी व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स. 2 tan x by 2 into tan x by 2 is 2 tan square x by 2 हो जाएगा. दिस टर्म मल्टीप्लाइड टू दिस टर्म. अब देखो ये जो दो टर्म्स है, चलो आपके रेफरेंस के लिए और एक स्टेप लिख देता हूँ. अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, इसका डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, प्लस नाउ ओवर हियर ये 2 अंदर जाके दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो व्हाट विल दिस बिकम 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x by 2 हो जाएगा. अपॉन डिनोमिनेटर में वी विल हैव 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 मिलेगा. तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है. चलो राइट डाउन एवरीवन.
नाउ यू ऑब्जर्व, ये दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम है, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू व्हाट, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 मिलेगा, numerator gets added. Now see what will happen students, 2 tan square x/2 2 tan square x/2 cancel हो गया, so what we are left out with 2 upon 1 plus tan square x/2 and this itself is nothing but our RHS. देखो हो गया प्रूफ, 2 upon 1 plus tan square x/2 हमें हमारा RHS मिल गया. Please make a note, problem is over. Okay students, now let us move on to these two problems. Now these two problems are not there in the exercise, but देखो ऐसा कोई restriction नहीं है कि क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो वो क्वेश्चंस नहीं आ सकते. देयर इज नो रूल एज सच, फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी जनरेट हो सकते हैं. ठीक है, so now what we'll do, let us number this as, ये 19th हो गया राइट, let us number this as question 20 and this as 21. So let us write down, ये स्टार मार्क किया है because they are the non textual example. So let us write down solution for question number 20. Let's consider the left hand side. अच्छा, one more thing we can do, जब हम left hand side consider करेंगे तो we can substitute the value of tan 60 degree. tan 60 का वैल्यू है √3, तो ऐसा देखो tan 60 का वैल्यू मैं डाल देता हूँ, tan 60 का वैल्यू इज √3 इंटू tan 20 डिग्रीज इंटू tan 40 डिग्रीज इंटू tan 80 डिग्री रिमेनिंग सेम. इसको हमें 3 प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते वक्त tan 60 डिग्रीज का वैल्यू डाल दिया हम. नाउ यू ऑब्जर्व दीज टू एंगल्स, 40 can be written as 60 minus 20 and 80 can be written as 60 plus 20. Sorry, down next step, this is further equal to √3 into tan 20 degrees remaining same. This will be written as tan of 60 minus 20 and this will be written as tan of 60 plus 20. ऐसा लिख लो आप इसको. चलो write down everyone quickly. I hope it is done till here students. Now it's very simple. अभी हम क्या करेंगे students, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan of a minus b का फॉर्मूला and here we'll be applying the formula for tan of a plus b. तो चलो let us do that. √3 into tan 20 degree remaining same. So tan of a minus b का फॉर्मूला, so that's nothing but tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. ये हो गया tan of a minus b का फॉर्मूला. अभी हम अप्लाई करेंगे tan of a plus b का फॉर्मूला. तो क्या मिलेगा, राइट डाउन tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. क्लोज द ब्रैकेट. ठीक है, ये जरा थोड़ा ब्रैकेट सही से बना नहीं है, वापस बना देता हूं मैं. फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है. Now what you do, substitute value of tan 60 degrees at all the places. This will be further equal to √3 into tan 20 degrees remaining same. tan 60 का वैल्यू है √3, तो √3 minus tan 20 degrees upon this will be 1 plus √3 into tan 20 degrees. Close the bracket. वही सेम चीज वहां पे हो जाएगा, √3 plus tan 20 degree upon 1 minus
√3 into tan 20 degree. Close the bracket. अभी आपको क्या करना है, a minus b into a plus b, here also a plus b into a minus b, दोनों जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करना है. So what will happen? Next step, √3 remaining same, tan 20 degree remaining same. हाँ, तो ये देखो, ये है a minus b into a plus b. तो a square minus b square होता है, we know that. √3 का स्क्वायर is 3 minus tan 20 into tan 20 is nothing but tan square 20 degrees upon 1 का स्क्वायर is 1. ठीक है. Now plus of minus is minus, √3 का स्क्वायर is 3 tan 20 into tan 20, so that is nothing but tan square 20 degrees मिलेगा. Close the bracket. सेम डिनोमिनेटर में भी a plus b into a minus b किया. हाँ, यहाँ पे भी वही है, a plus b into a minus b. Now what do we do? This tan 20 degree gets multiplied inside. ये अंदर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप? दिस विल बी √3 into, this will become 3 times of tan 20 degrees minus tan square 20 into tan 20, तो वो हो जाएगा tan cube 20 upon, in the denominator this will become, this will remain same, 1 minus 3 tan square 20 degrees रहेगा. Close the bracket. अभी एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है स्टूडेंट, वो पहले फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं. 3 tan थीटा minus tan cube थीटा upon 1 minus 3 tan square theta. This is the formula for tan 3 theta. ये tan 3 theta का फॉर्मूला है. देखो आप नोटबुक में, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले. दिस इज tan 3 theta का फॉर्मूला. So what will happen? √3 remaining same. अब कंपेयर करो आप ये ब्रैकेट को फॉर्मूला से कंपेयर करो, तो थीटा के जगह पे 20 डिग्रीज है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 20 डिग्रीज डालो, तो दिस विल बिकम tan ऑफ 3 into 20 डिग्रीज. क्लोज द ब्रैकेट. तो 3 into 20 is 60, तो ये हो जाएगा √3 into tan 60 डिग्रीज. √3 रिमेनिंग सेम, tan 60 का वैल्यू √3 है, √3 into √3 3 है, and this itself is nothing but our RHS. ये देखो आ गया 3 आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. इट्स एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसा एक्सरसाइज में, बट स्टिल इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. चलो लिख लो आप ये. Okay students, so let's move on to the next and the last question for exercise number 3.3. That is question number 21. Please consider the left hand side. It's written on the board. अब यहाँ पे हमें sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है न्यूमरेटर में. तो चलो write down. This will be further equal to, next step. Now sin 3 theta is nothing but 3 sin theta minus 4 sin cube theta होता है. चाहिए तो you can put a bracket for this. नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा. प्लस cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Whole in the denominator we are having cos theta minus sin theta. तो डिनोमिनेटर को आप सेम रखो. Now what do we do? In the numerator from these two terms, okay, चलो थोड़ा रीअरेंज करते हैं न्यूमरेटर को. This is further equal to 4 cos cube theta minus 4 sin cube theta, and from these two terms let us take
साइन -3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये दोनों टर्म्स में से जब -3 कॉमन आ जाएगा, हाँ चलो ये आप कॉमन बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। चलो ऐसा देखो आप, -3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, रीअरेंज कर लेते हैं पहले, नॉट डूइंग इट डायरेक्टली, अपॉन डिनोमिनेटर को आप सेम रखो, cos थीटा minus sin थीटा। Now from these two terms 4 can be taken common, तो 4 कॉमन आ जाएगा। We will have cos cube theta minus sin cube theta। From these two terms -3 कॉमन आ जाएगा। We will have cos theta minus sin theta inside the bracket। होल अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वी विल हैव cos थीटा माइनस sin थीटा मिलेगा, मतलब है वो ऑलरेडी, रहेगा वो एज इट इज। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर हाउ डू वी कम टू नो कि वी हैव टू रीअरेंज एंड -3 ही कॉमन लेना है, ऐसा क्यों करना है? ऑब्जर्व राइट हैंड साइड में एक तो डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल होना चाहिए। ओके, सो व्हाट डू वी डू नाउ, हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस b क्यूब। तो आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a क्यूब माइनस b क्यूब इज नथिंग बट a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस विल बी मोर बेटर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप लिखो आप, दिस इज फर्दर इक्वल टू 4, ओपन अप अ ब्रैकेट, दिस विल बी रिटर्न एज cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू, देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर तो वो देगा cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए बी मीन्स cos थीटा sin थीटा, क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट, ये टर्म सेम, -3 टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, ये वाला टर्म सेम रहेगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा। cos थीटा माइनस, so upon in the denominator will have cos theta minus sin theta, थोड़ा जरा कनेक्टिविटी इशू था। now I just rub this off, let's continue it ahead and finish it off students। now you see ये दोनों टर्म्स में से दिस होल ब्रैकेट इज वन टर्म, ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म्स में से cos थीटा माइनस sin थीटा कॉमन आ जाएगा ना, दिस इज फर्दर इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा टेकन कॉमन फ्रॉम हियर, तो यहाँ से क्या बच गया, 4 बच गया ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा इज लेफ्ट आउट, क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। ये ऐसा करो, ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी ओपन रहने दो, ओके, डोंट क्लोज इट आउट। तो यहाँ से भी cos थीटा माइनस sin थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से ये -3 बचेगा। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, डिनोमिनेटर इज द सेम स्टिल नाउ, cos थीटा माइनस sin थीटा है डिनोमिनेटर हमारा। अब देखो इट्स क्लियरली विजिबल कि ये cos थीटा माइनस sin थीटा और ये cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट यू डू, जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट, तो व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 4 cos थीटा sin थीटा -3, ये 4 ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, दिस 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू दिस, वो -3 अलग है, सेपरेट है। So this is further equal to, what will happen now,
4 माइनस 3, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस दिस 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 ना, ऐसा लिखो आप रीअरेंज करके, 2 इंटू 2 है, हाँ ये ऐसा आप ब्रैकेट डाल दो आप। आई रिपीट व्हाट वी हैव डन, 4 माइनस 3 1 हो गया, दिस 4 इज 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 होता है, sin थीटा cos थीटा एज इट इज, so this is further equal to ये 1 remaining same, ये 2 remaining same, this is nothing but sin 2 theta. आगे RHS, and this itself is nothing but for RHS, hence proved. So see, we have considered the left hand side, and by using the appropriate formulas we have obtained the right hand side. So with this problem we finish off our exercise number 3.3. बट प्लीज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितने भी फॉर्मूलेज अभी तक सीखे हैं वो हमें आगे भी जाके लगने वाले हैं. टॉपिक इज नॉट येट ओवर, देयर आर फ्यू मोर फॉर्मूलेज दैट आर गोइंग टू कम, ओके, एंड दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So please make a note and then we'll stop for today. We have finished off with this. ये लिख लो आप. So I hope you must have written it. So please keep studying and please keep watching my YouTube channel. Thank you very much.